sir. What is communication and what is the barrier of communication? These are reciprocal questions one has to ask himself or herself. No two person or no two people in the world are exactly alike, and no two culture or countries are the same. Each person mind is unique filter of mind with the communication are more likely to occur when the communication filter are sharply different. In this world, people are different from each other. They do not have the same mind filter exactly to the next person. The message sender's meaning and the receiver response are affected by numerous factors such as individual perception. That means the experience he did in his life. There are certain points, conventions of the meaning, perception of reality, values, attitude, and opinion. All these things they make the the perception or the way of communication to the next person. Barrier to communication interfere the communication process and prevent effective communication. There are some other points we definitely discuss gradually. The people they have a filtering, selection of perception, information loaded, language barrier, culture, psychological barrier or physical barrier, technological barrier, personal barrier, emotional barriers. All these things they are triggered to your language. Uh, this topic is interesting in that aspect. When you have this knowledge, the people they have different experiences in life. According to their experiences, they use the language. In this picture, we see someone wants to communicate uh, in a aggressive mood, but the next person or the female is surprised what's going to happen, why this person is conveying the ideas so differently. So this is the intro of this topic. Gradually we are going to define the importance uh, of this topic, why the barrier happens in communication. Necessity for planning. Communication is necessary for planning, understanding each other, establishment of effective leadership, increase efficiency, basis of decision making, smooth working in the organization or the entrepreneur, motivation, coordination. All these things they are the basic concept of communication. Here on the other side, कम्युनिकेशन की और बैरियर की क्या है, दो चीजें हैं. अभी हमने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है और कुछ फंडामेंटल्स हमने बैरियर के डिस्कस किए हैं पॉइंट्स को. हम अभी इसे इस टॉपिक को बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के लिहाज से देखें. वी ऑलरेडी डिफाइन व्हेन वी कम्युनिकेट वी चेंज द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन थ्रू आवर कम्युनिकेशन. हम अपने बिहेव से दूसरे को, अपनी कम्युनिकेशन से दूसरे के बिहेव को तब्दील करते हैं. इफ आई से यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इफ आई से व्हाट यू लो, बहुत अच्छा सर सर सुन रहे हैं. बहुत अच्छा फील होता है बिकॉज आई लाइक योर पर्सनैलिटी और आई गिव यू क्रेडिट दैट यू आर गुड, you feel good that these words change the behavior to your personality. ठीक है, आपको फील होता है कि ये कुछ अच्छा कहा गया है. ऐसा ही है जी. जी सर. जी बिल्कुल सर. Anything that hinders the process of communication at any of these level is a barrier to communicate. ये definition है. कोई भी चीज जो आपकी कम्युनिकेशन को रोकती है उसे बैरियर कहा जाएगा.
barriers to communication can be defined as the aspects or the condition that interfere with the effective exchange of ideas or thought. जी आप में से yes please anyone volunteer. कोई भी फैक्टर्स जो हमारी कम्युनिकेशन में को रोकते हैं, उनमें बैरियर पैदा करते हैं। हाँ, उससे और फिर हम लोग की अपने आइडियाज और थॉट्स किसी दूसरे को ही इनिशिएटिव दे रहा हूँ जी। A barrier, a ये भी एक बैरियर है, उसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई है कि टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एट सम टाइम। ठीक है जी सर। ओके जी, लिसन केयरफुली। सर मैं तो जी आप बताएं। जी बताएं। एनी फैक्टर दैट अफेक्ट्स द वे ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज अ बैरियर। ठीक है जी, कोई भी यानी सर जी, आपकी मैं भी बताऊं? जी आप भी बताएं। सर यानी कि हम लोगों की कम्युनिकेशन में जो जो सी रुकावटें आती हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती, सही तरीके से हम लोग अपना पैगाम दूसरे तक कन्वे नहीं कर सकते, तो वो बैरियर्स होते हैं वेरी नाइस, कम्युनिकेशन के। वेरी नाइस, एग्जैक्टली जी। एनी अदर वॉलंटियर? सिचुएशन या कंडीशन जिसकी कोई भी सिचुएशन या कंडीशन जिसकी वजह से क्या होता है कि दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ना वो इफेक्टिव हो जाती है, यानी वो उस तरह से नहीं हो पा रही होती जैसे उसको होना चाहिए, तो वो भी एक तरह का बैरियर आ जाता है। वो बहुत सी ऐसी कंडीशंस भी हो सकती है कि जैसे कोई लोग मतलब काफी फासले पे बैठे हों, तो उन दोनों के दरमियान जो बातचीत हो रही है वो सही तरह से नहीं हो पा रही है। जैसे अब ये भाई ने बताया, तो हमारे दरमियान मतलब क्या हो रहा था, एक बैरियर आ रहा था जिसकी वजह से ये अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी एक तरह का बैरियर ही हो गया। बिल्कुल ठीक है। और यानी ये सिचुएशन होगी इस तरह। जी जी सर जी एक क्वेश्चन है जी सर जी, वो कम्युनिकेशन जिसने करनी है वो कम्युनिकेशन करने से पहले कोई प्लानिंग भी करेगा, उसे कम से कम जो बैरियर आ रही है वो कम करने की कोशिश करेगा तभी कम्युनिकेशन। लेकिन फिर भी उसमें जो वो तो डेफिनेटली प्लानिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, तो उसको हमने डिस्कस करना है। वो बहुत सारी चीजें हैं। वी डेफिनेटली डिस्कस ऑल दोज फैक्टर्स व्हिच आर अनकॉन्शियसली इन्वॉल्व इन योर कम्युनिकेशन, unconsciously, not consciously. Count down these points, we definitely clarify ourselves what are the barriers. According to my concept, I divide barriers into three major aspects, three major categories. The first one is physical barrier, the second one is technological barrier, and the third one is uh, psychological barrier. And here we can subcategorize noise barrier. Okay, these three and one subcategory, they overcome or makes a total concept of this topic, barrier of communication. But here are a number of other factors which are defined different writers. We definitely look upon all these factors here. If we look upon the slide, physical barrier, semantics and language barrier, socio-psychological barrier, organizational barriers, cross-cultural barriers. So when we look upon these points, the first one is physical barrier. When any object it involves in your communication, that is called physical barrier. For example, if two person or the people they are communicating to each other, if third person intervene or stand in front of or in between or between these two person, that is considered as physical barrier. आपके दरमियान में कोई तीसरा शख्स आ जाए जब आप बातचीत कर रहे हैं, तो उसे हम फिजिकल बैरियर कहेंगे। या आपके दरमियान कोई ऑब्जेक्ट आ जाए जो आपकी कम्युनिकेशन को हिंड्रेंस आए, उसमें रुकावट आए, उसको हम कहेंगे ये फिजिकल बैरियर है। ठीक है जी। सिमेंटिक barrier, semantic and language. As we discuss, the human being they have a different mind filter according to their experiences and their learning ability. कि इंसान का जो है
वो मुख्तलिफ नॉलेज एस्पेक्ट होता है एक्सपीरियंसेस की वजह से। अभी मुझे अगर उर्दू आती है तो आपको पंजाबी आती है या कोई और लैंग्वेज आती है। शायद मुझे पंजाबी नहीं आती, तो ये एक लैंग्वेज बैरियर होगी कि आप मुझसे कोई चीज़ पूछना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो मैं आपको कन्वे नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उस लैंग्वेज में मुझे कमांड हासिल नहीं है। We can easily take this example in society. There are two sort of people, educated and non-educated people. So if someone who is illiterate, he wants to ask something to the educated person, there is a gap of language, there is a gap of communication, and it is not possible to convey the ideas exactly according to the mind of a uneducated person. Okay. से कुछ बच्चे जो है वो पीछे से उर्दू मीडियम पढ़ के आते हैं स्कूल लेवल पे, तो एकदम से जो है वो जब हाई लेवल पे आते हैं तो इंग्लिश मीडियम सिलेबस हो जाता है सब, तो ये भी तो बैरियर में आता है ना कम्युनिकेशन में। शुरू में उनको जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 24 घंटे मुश्किलात ही सामना करना पड़ता है। तो वो जैसी भी एजुकेशन हो, जो आपने कहा है कि एक सरफेस लेवल पे ये कॉन्सेप्ट है कि उन्हें डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। At any stage of student position, he or she has to face all these things, whether they are competent in Urdu or English. दोनों का कहीं ना कहीं कोई, देखें आपकी इंग्लिश वीक है लेकिन इनर लेवल पे हमने खुद बनाई हुई है। ठीक हो गया जी? जी सर। हाँ, somehow आप सही कह रहे हैं, somehow ठीक है, but not exactly 100%. सोशो साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या हैं। ठीक है जी? सर जी। आपने राउफ को कहा कि somehow मतलब कुछ लेवल तक ठीक है आपकी बात। सर अगर हम देखें सूबों के लिहाज से, या कह लें कि यहाँ से एक पाकिस्तानी बंदा है वो सऊदी अरब में जाता है, वहां जाकर एडजस्ट हो जाता है, तो वहां पे सर अरबी लैंग्वेज और यहाँ पे उर्दू नेशनल लैंग्वेज कम्युनिकेट करने के लिए वहां के लोगों से, क्योंकि उसे वो लैंग्वेज नहीं आती। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है, इंटर कंट्रीज दोनों में यही प्रॉब्लम है। यानी आप अपने मुल्क में भी इस किस्म की चीजों को फेस करते हैं, बाहर भी फेस करते हैं। ठीक है जी? जी सर। जी सर। सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर, psychological barriers, the people, they are not like the normal human being. They have some damages, they have some disabilities, so that's the reason of their communication. For example, slip of tongue or some damages in vernix area और ठीक है जी, ये दो एरियाज हैं। ब्रोका एरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द साउंड। ये जो हम आवाज स्पीच ऑर्गन से निकालते हैं, ये ब्रोका एरिया जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है, वहां से इसकी कमांड आती है और स्पीच ऑर्गन्स साउंड को ऑर्गेनाइज करके प्रोड्यूस करते हैं। जबकि वर्निक्स एरिया जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर में है, उसका काम ये है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, कि ये जो भी हम चीज समझते हैं, हमें समझ में आती है, तो वो वर्निक्स एरिया में वर्किंग होती है उसकी। अगर इन दोनों में से किसी एक में डैमेज आ जाए, ठीक है जी, हमारी या तो समझ चली जाएगी या हमारा बोलना उसमें डैमेजेस आ जाएंगे। ये दो बहुत मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। फिर थर्ड वन हम कह सकते हैं नॉलेज, वोकैबुलरी, सिमेंटिक्स, कि आपकी वोकैबुलरी कम है या किसी दूसरे शख्स की ज्यादा है, तो ये एक बैरियर आ सकती है, सिमेंटिक प्रॉब्लम आ सकती है। फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे अगर सिंधी नहीं आती, बलोची नहीं आती, तो ये लैंग्वेज बैरियर भी मेरे लिए हो सकती है। इसके अलावा पुअर स्पोकन प्रोनंसिएशन जो है, ये भी लैंग्वेज बैरियर हो सकती है, कि आप किसी लफ्ज को, जो जैसा बात साउंड होती हैं, आप एग्जैक्टली PALE और PAIL, ये जो आपने पेयर वर्ड या कुछ ऐसे साउंड वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, स्पेल एक जैसे होते नहीं, स्पेल डिफरेंट होते हैं, साउंड जी साउंड एक जैसी होती है। ठीक है जी?
तो इसको ये कहते हैं होमोफोन। होमोफोन वो होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है। होमो का मतलब है सेम, फोन का मतलब है साउंड। साउंड। ठीक है जी, होमोफोन। इस किस्म की ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, in a society there are different organization and they have their own culture. According to their culture, you are not fitted or comfortable in the organization. You feel barrier to communicate to someone, कि आपको बात करते हुए डर लगता है, स्ट्रेस होती है। आपका आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, दैट्स सो मच इम्पोर्टेंट इन लाइफ। it's a million time worthful sentence that if you have a good physical context, everything is based on physical context. I consider that it is more valuable than anything else. कि किसी भी चीज से ज्यादा जो है वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के ही सब चीजें, पैसे उसी चीज के हैं। आपका घर बहुत अच्छा है, आपके सराउंडिंग बहुत अच्छी है, तो वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होगा। ठीक है, हम इमेजिनेशन करते हैं, बीच की इमेजिनेशन करते हैं, मुख्तलिफ इमेजिनेशंस होती हैं, वो कॉन्टेक्स्ट की होती हैं, नथिंग एल्स। सिमिलरली इन द ऑर्गेनाइजेशन द पीपल दे हैव अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कि वहां का जो बिहेव है, वहां का जो इन्वायरमेंट है, उससे कम्युनिकेशन प्रीवेल करती है, बढ़ती है या कम होती है। दो ही चीजें हैं, या उससे बूस्ट होगी या डिटीरियोरेट होगी, डिप्राइव होगी। ठीक है जी, तो ये लोग इसको देख के आप अपनी प्रोफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी, अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं या उनमें कमी वाकई हो सकती है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे पूछ लें। सर फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट है? इन्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, you are used to live in the big house, that's your physical context, you feel comfortable. You are used to live in a small house, that's your physical context and you feel comfortable. We find different comfortable zones in our life and we propagate to other people and we give a good glance. We become happy, we portray in front of other people, we imaginize. So it is the deficiency of the human being that without physical context we cannot live, कि सब चीजें फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में ही आती हैं। आप ड्रीमिंग करते हैं, वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की करते हैं और किसी चीज की नहीं है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस सर। जी सर सर। ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसमें हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी लैंग्वेज वगैरह नहीं आती, तो हम अपने माइंड में खुद से एक डेफिशिएंसी फील करते हैं, तो ये एक Depravity, साइकोलॉजी proficient human being compared to other human being, कि आप कंपटीशन से पीछे निकल जाते हैं और आपको ये फील होता है कि मुझ में ये डेफिशिएंसी है, उससे आपकी परफॉर्मेंस कम होती है। कल्चरल बैरियर्स, there are different culture in the world, people they have their own values, according to their values they get response. हमारे यहाँ अपनी वैल्यूज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में अपनी वैल्यूज हैं और उनके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। देयर वेयरिंग, देयर क्लोथिंग, देयर आउटफिट्स, देयर ट्रेडिशन ऑफ मील, eating time or some other things, what they eat, how they eat and how they behave, all these things they are total sum of their culture. ठीक हो गया जी? जी सर। ये देखें जी, ये तो सर ऑर्गेनाइजेशन। जी इससे सर पूछें। क्या बैरियर आ सकता है? देखें, आपका कल्चर अगर डिफरेंट है तो बाहर हमारे कल्चर में हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, उनका एक कल्चर है। somebody, हम अपने दोस्त को फ्रेंड कहते हैं। ठीक है, ये है कि जो भी कल्चर होता है उसकी अपने वैल्यूज, कोड, लैंग्वेज, कोडिंग होती है। ठीक है, हमारे यहाँ जी सर। अपने कोड्स और वैल्यूज हैं, हम उनके मुताबिक any object that hinder in your communication, that is considered to be a physical barrier.
कि आपकी कम्युनिकेशन में कोई भी चीज हाइल होती है तो हम उसे कहते हैं कि ये फिजिकल बैरियर है। ठीक है जी। इस स्लाइड में दिखाया गया है, इसमें लोग बात करना चाह रहे हैं लेकिन जो उनके उनके ऑफिस के ब्लॉक्स बने हुए हैं वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। जी सर। सर ये जो नेटवर्क का अभी इशू हुआ था, ये मीटिंग कट गई थी, मीटिंग का इशू था, ये कौन सा बैरियर है? ये भी फिजिकल बैरियर में आएगा? ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, फिजिकल नहीं है। फैकल्टी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्लोज ऑफिस डोर्स इज ऑल्सो अ बैरियर, क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीक हैं तो बहुत ज्यादा दूर हैं तो प्रॉब्लम है। It forbids team members for effective interaction with each other. You know, in every aspect, you have to face difficulties or barriers in communication. कि आपके ऑफिस अलग हैं तो प्रॉब्लम है, अगर क्लोज हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी वर्किंग अफेक्ट होती है उससे। लेकिन सर ये जितने भी बैरियर्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ये सर कम्युनिकेशन के अलावा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो फायदेमंद है। नो, यानी उनके लिए लार्ज सरफेस एरिया भी उनके लिए जरूरी है। you know, to become a moderate in every aspect, कि आपको जी सर। दरमियानी रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। बहुत ज्यादा आप वाइड स्पेस ना हो, बहुत ज्यादा क्लोज ना हो। what is the responsibility of the manager to manage everything, and which is the suitable thing for the for the employees and as well as for the organization? कि वो सोचना होता है उसने क्या चीज मेरे एम्प्लॉयज के लिए ठीक है, क्या चीज मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है, इन्हें मैंने किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। All the time the manager has this responsibility to think about. बात समझ में आई है? सर लेकिन यस सर सर। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो मैनेजर होता है या कोई हाई लेवल एम्प्लॉय होता है, तो वो जो लो लेवल एम्प्लॉयज होते हैं ना, कोई इन्फॉर्मेशन मतलब उन तक नहीं डिलीवर करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम लोग मतलब कोई भी उन लोगों ने कोई सजेशंस वगैरह लेनी होती हैं, तो जो हाई लेवल एम्प्लॉय होता है वो अपने लो लेवल एम्प्लॉय को वो इन्फो नहीं देता है। बिल्कुल वो ठीक सोचते है। हैं कि वो सोचते हैं कि हम तो मतलब हमारा जो लेवल है वो इनसे ज्यादा हाई है, तो ये हमारे लेवल की कैसे बात समझ सकते हैं। तो सर ये फिर किस में आता है? ये मेंटल बैरियर में आएगा, यानी ये साइकोलॉजिकल या मेंटल या पर्सनल बैरियर में आएगा। ये इसको मैं वैसे मेंटल बैरियर कहता हूँ। पर्सनल में भी आ सकता है कि आपका बिहेव, आपकी मिसपरसेप्शन है। सर ये स्टेटस डिफरेंस में भी आ सकता है ना, स्टेटस डिफरेंस। Yes, definitely, but it is in a total sum we can say that it is your personal barrier because you think different, you have a wrong perception, somebody has a wrong perception. ठीक हो गया जी? जी सर। आपने ये जो नोट्स पढ़े होते हैं ना, आप नैरो डाउन करके एक चीज पे सोच रहे होते हैं, हमने उसको वाइडर कॉन्सेप्ट पे लेना है। मैंने कहा कि मैंने इनको 3 चीजों में डिवाइड कर लिया, इसमें बहुत सारी और भी उन्होंने सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं, लेकिन मैं उसको मेजर एस्पेक्ट में देख रहा हूं। आपकी बात सही है कि ये परसेप्शन रॉन्ग होने की वजह से साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकती है, यानी उस बंदे की साइकोलॉजी ठीक नहीं है, उसकी थिंकिंग पैटर्न ठीक नहीं है, नेगेटिव है। तो ये पर्सनल भी होता है, माइंड भी है, दोनों चीजें लोग इसको कंसिडर। पर्सनल मीन्स पूरी बॉडी, और माइंड मीन्स योर मीन्स ब्रेन टू थिंक। बात समझ में आई है अभी? जी सर। ओके ओके जी। फिजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज, फिजिकल आउटसाइड डिस्टर्बेंस, साइकोलॉजिकल नॉइज, इनअटेंटिवनेस, कि आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं मीटिंग में, आप लेक्चर में, ये साइकोलॉजिकल नॉइज है। हालांकि नॉइज शोर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये इलनेस है, एलिमेंट है। यू आर नॉट अटेंटिव टू कैच द आइडियाज, to discuss something, to participate in your conference. ठीक है?
ये बेसिक प्रॉब्लम है, यानी हम इसको साइकोलॉजिकल नॉइज कह रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? जी Yes, सर। sir. Okay, written noise, bad handwriting, you know, it is a different concept. कि आपने अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, तो ये रिटन नॉइज है। विजुअल नॉइज, व्हाट इट इज? सर ये लेटर डॉक्टर्स की लेट अराइवल ऑफ द एम्प्लॉइज, कि आप लोग, ये कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है सब चीजें। जी, क्वेश्चन था आपका। सर जैसे बैड हैंड राइटिंग वो डॉक्टर्स की होती है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते। हाँ जी, किसी की भी हो सकती है, स्टूडेंट की होती है, टीचर, मैं बाज़ औक़ात जल्दी लिखता हूँ तो वो ऐसे ही समझ में नहीं आता है लोगों को, ये हो सकता है। किसी भी एक स्टूडेंट, टीचर, किसी भी इंसान की कुछ हैबिट जो ठीक नहीं है, जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, योर बिहेवियर, व्हेन यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास, आई फील सफोकेटेड, आई चोक डाउन माई सेल्फ, मुझे दिल करता है छोड़ दूँ, लेक्चर ना पढ़ाऊँ। ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स देने वाले नहीं है। ये बैरियर है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। ये यानी मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस होती हैं। आपका रिस्पॉन्स टाइम पे नहीं आता, यस नो आप नहीं, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, दैट्स अ साइकोलॉजिकल बैरियर, दैट्स अ पर्सनल बैरियर, इमोशनल बैरियर, कि आपके इमोशंस टेम नहीं है, व्हेन एंड हाउ यू हैव टू गिव द रिस्पॉन्स। ओके जी। यस सर। टाइम एंड डिस्टेंस, improper time, talk to other person, that should be a suitable time। रात को 1 बजे किसी को कॉल ना करें, मैसेज ना करें, ये हमारी हैबिट हम नहीं देखते हैं। इफ यू आर फ्रेंडली विद समवन यू कैन, बट इफ somebody who is a stranger, you should not communicate improper time, at improper time। जी सर। Network यस facilities, सर। mechanical breakdown, that's a technological barrier in a total sum। ये तमाम चीजें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कि बहुत ज्यादा आइडियाज दिमाग। जी। सर ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या होता है, इसकी कोई एग्जांपल दे दें। ये फोन से डिस्टॉर्शन का आना, आना, आवाज प्रॉपर नहीं आना। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनेट से, आपकी आवाज बाज़ औक़ात कट जाती है, मेरी आवाज कट जाती है। जो ले रहे हैं तो इसमें अक्सर If you do not have a good facility, you cannot overcome it। सर थैंक यू सो मच। No problem at all। सर जी। सर कोई भी अगर बैरियर अनकॉन्शियसली आ जाए तो सर उसको टाइम तो लगेगा ना सही करने में, सर फौरन तो नहीं होगा ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। With the passage of time, you can make correct of any problem, barrier or mistake with the passage of time। जी सर। हम कल्टीवेट करते हैं डिफरेंट जो परसेप्शन या आइडियाज होते हैं, हम लोगों की पर्सनालिटी में उनको कल्टीवेट करते हैं। इट डेफिनेटली इट टेक्स टाइम। It is not a nightmare after one day or after one night you can overcome anything। It is not possible। You need good time to improve your any deficiency। ठीक हो जी गया जी। सर यस आपने सर। कल आपने ASM का बोला था, जी। अमेरिकन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो सर वो बता दें आप। वो मैंने कहा था आउट ऑफ स्कोप है। जैसे टीचर को कोई सवाल नहीं आता या उसको वो बताना नहीं, उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, तो वो मैंने आउट ऑफ स्कोप में डाल दिया था। जी सर। लेकिन सर आपने गूगल क्लासरूम पे जी क्विज दिया था, वो उसका बता दें थोड़ा सा। quiz is about the documentation। I have provided you multiple type questions। There are questions and answers। What you have to do, you have to revise time and again। It may be considered as memorization,
but after that I will take quiz. सर वहां पर नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, क्या चीज सबमिट करवाएंगे हम? वो जो आप जीआर ने हमें पीडीएफ फाइल सेंड की है उसमें नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं मल्टीपल क्वेश्चंस के। जीआर ने नहीं दिए, वो टीचर आपके जो इंग्लिश के टीचर हैं उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। ये सर जीआर के थ्रू मिले हैं, मैं वो कह रही हूँ मतलब। नहीं, पोर्टल पे देखें, जीआर को भी मैंने सेंड किए थे और आपके पोर्टल पे भी अपडेट किए हैं। ये सर उसी का पूछ रही हूँ मैं। तो उसको आपने रिवाइज करना है, वो किसी दिन हम टेस्ट आपका ऑनलाइन रखेंगे, अभी डिसाइड कर लेंगे। सर जी एक्चुअली वो ना ब्लैंक क्विज जो है ना अपलोड हुआ था, इस वजह से इनको लग रहा होगा ब्लैंक क्विज था ना। Blank means file is not open or there is something. सर फाइल ओपन होती है, फाइल ओपन होती है, उसमें जस्ट एक जो है वो ऑप्शन होता है खाली, कुछ भी लिखा नहीं होता। जैसे उसको क्लिक करें, ऑप्शन शो नहीं हो रहे सर उसको क्लिक करेंगे ना तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, देन सबमिट हो जाएगा, सिंपल, बस रिस्पॉन्स है जस्ट, और कुछ भी नहीं है वो सर। और ना उसके साथ ना ड्यू डेट भी लिखी हुई थी 5 नवंबर और पॉइंट्स भी लिखे हुए थे 10, इस वजह से हमें लगा शायद हमें कुछ सबमिट करवाना है। Please. सर Is he there? नो सर वो नहीं है। रोल नंबर 62। आप जो अवेलेबल है ना उनके sir. उनके रोल नंबर आप उनको कॉल करें। ओके सर ठीक है। रोल नंबर 63 शामीन सना। यस सर। Okay. Could you please tell us about what is the emotional barrier? सर इमोशनल बैरियर वो होता है जब हम किसी से बात करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि हम किसी से बात कर सकें, अपनी कम्युनिकेशन कर सकें दूसरे सामने वाले पर्सन से। और इमोशनल बैरियर वो बैरियर होते हैं जिनमें हम मतलब सामने हमारे सामने जब ज़्यादा क्राउड वगैरह हो तो हम उसके सामने ना बोल सकें, जल्दी इमोशनल हो जाए। You are not confined your own self. You are not sure about your own self. यस सर। आपको भी श्योर नहीं है ये ठीक है या गलत है, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें कि इमोशनल बैरियर ये होता है कि व्हेन यू आर सो मच एग्रेसिव टू एक्सप्लेन, you have a loud voice and you cannot be able to control your emotions, you cannot control your voice. That is definitely due to nervousness, but on the surface your voice is triggered to calm down and listen the ideas, whether they are good or bad, whether they are logical or not. You have to give answer in a positive way or through logical way. Do you understand? यस सर। किसी कोई स्टूडेंट और? सर जी अभी मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल, वहाँ पर मैं उनसे कम्युनिकेशन कर, लेकिन फिर भी वो मैं इमोशनल हो रहा था, मुझे हेडेक स्टार्ट हो गई, अच्छी तरह से मुझसे कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा था, क्या वजह घबरा रहा हुई? था, परेशान। क्या वजह थी? बस वो पता नहीं क्यों इमोशंस की वजह से, शायद लो कॉन्फिडेंस की वजह से घबरा रहा था। आपकी पर्सनालिटी में पैचेस लगाने वाले हैं। ये आपकी अपनी वीक परसेप्शन, स्ट्रेस लेने की वजह से भी। हाँ, वीक परसेप्शन है। एक तो ये है कि मेरे इमोशंस यूं हो रहे हैं। एफएससी मैंने वहीं चलो पे ही ठीक की है है तो मैंने और इसीलिए तो टीचर का नाम तो नहीं बताया कहीं आपने? नहीं यानी कोई सर, भी मैं हो सकता। वहां पर पढ़ता रहा हूँ ना सर, हाँ जी, ठीक है। इसलिए मुझे वहां पर इजी लगा, मैं वहां पर चला गया। चलो ठीक है। टीचर का नाम तो नहीं बताया? नो सर, नाम नहीं बताया। चलो गुड हो गया। मैंने कहा कोई हर्ट ना हो, यानी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ये होता है। आप पॉजिटिव भी है, मेरे जानने वाले बहुत अच्छे वो दोस्त हैं, आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप।
तो लेकिन वो फिर मैं ये सोच रहा था किसी कोई हर्ट ना हो. Why it happens? Because you think like that, you have a weak perception about yourself. That's the one reason. And second one is you haven't give a good respect by society members. आपको ना लाइफ छोटे होते से अभी तक इज्जत नहीं अच्छी दी गई है. ठीक हो गया. सेकंड पॉइंट क्या है? मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? Yes sir. Yes, sir. And third one is your personality. I already discussed about the combination of different things like your development. आपकी डाइट है, आपका खाना पीना है, आपका बात करना है, वो चीजें भी आपको वहां पे भी डेफिशिएंसी हुई है, जिसकी वजह से ऐसा होता है. When you come across with somebody who has a good status, you became nervous. ठीक हो जी गया? सर, बिल्कुल इसी तरह. तो ये 3-4 रीजंस हैं. मैं ना बड़ी कॉमन, अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा के वहाँ पे भी टॉपिक था तो पढ़ाया वहाँ पे, तो बच्चों से बात डिस्कस हो रही थी. What we parent or teacher they do similarly, that is reciprocal in the shape of our children. यानी जैसा बड़े करते हैं वैसे ही छोटे करते हैं. आपकी डेफिशिएंसी हमारी वजह से है. मैं इसको रिस्पॉन्सिबल ये समझता हूँ, आपके पेरेंट और टीचर दे आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर डेफिशिएंसी. ठीक है? Yes sir. आपने कभी नोट किया है कि कभी गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए, अगर आपके यानी पेरेंट के साथ बच्चे हैं, तो if somebody became frustrated during driving on the road, आपने देखा होगा कोई, क्योंकि डिफरेंट लोग मुख्तलिफ तरीके से ड्राइविंग कर रहे होते हैं. ठीक है? तो किसी की ड्राइविंग से किसी दूसरे को थोड़ा सा हार्म पहुंचता है या वो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो वो फौरन हम उसे अब्यूज करते हैं, बदतमीज, गधा, फलां फलां फलां. आगे मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं. वो बच्चा जो हमारे साथ बैठा है वो अपने बाप को देखता है ना, उसकी फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन जब देखता है वो बच्चा छोटा, वो भी जब बड़ा होता है तो वो भी वैसे ही करता है. Yes sir, बिल्कुल. गॉट माई पॉइंट कि आपके पेरेंट की फ्रस्ट्रेशन भी आपके जिम्मे, और जो ट्रीटमेंट हमने दिया आपको वो भी आपके जिम्मे. ठीक है? जी तो सर. ये तमाम और मिलके आपका प्रॉब्लम बन गया है अभी जो सिचुएशन आपको फेस करना पड़ती है. पर आई गिव यू दिस एग्जांपल. माय जी Yes सर. sir. give as denotation. Denotation means dictionary meaning, and the second one is connotation. That means associative meaning according to the situation, contextual meaning. For example, I give you this example here as a connotation meaning. My personality represent as a teacher. ठीक है? But in society I have different roles like father, brother, son, husband. So I have a different roles according to different situation. According to different situation के situation के लिहाज से मेरे जो अपने मतलब हैं, अपने नाम के मतलब, स्टेटस के मतलब हैं, मेरा जो स्टेटस है वो तब्दील हो रहा है. तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं जो हम रिफर करना चाह रहे होते हैं. यानी डिक्शनरी मीनिंग क्या है, वो एक ही रहते हैं. डेनोटेटिव मीनिंग, फॉर एग्जांपल बुक इज कंसिडर्ड ऑलवेज एज अ बुक, बट some status they define different meanings. आपके मुख्तलिफ मीनिंग हो सकते हैं. तो हम जो मीनिंग रिफर करते हैं किसी भी चीज से, कोई भी की परसेप्शन इसके बारे में मुख्तलिफ है. मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ सिचुएशन में. मैं कहता हूँ इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपके लिए नुकसान पैदा हो सकता ऑफ टेक्नोलॉजी. अच्छा जी, हमने ये डिस्कस कर लिया. अभी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें. जिनकी बारी थी वो बताना कुछ.